ओम शांति। सभी बोलेंगे प्यार से, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Though physically we did not go to Mahakumbh, through this activity what we have done just now, you all went there? Certainly? Yes? Yes or no? Yes? It's very important to feel the energy, right? It's mainly the part of energy which we all are celebrating these auspicious days. So one facet of Mahakumbh is physically visiting and physically performing the rituals or taking bath, all those things are there. The second aspect is wherever I am, can I create that Mahakumbh itself here? How is it? How is it? Wherever I am, I can create that energy, those vibrations, wherever I am. Is that good? Because no one has raised their hands for this Mahakumbh if they have visited, right? So lots of people, if you take the means the population part, 1/3 of India is visiting there, more than 40 crores. It's a big number. So this is something which we are in this time, this Kumbh Mela fever, the whole country, the whole world is in. So how can we create those vibrations here? What is the Gyan Mahakumbh? That part we will understand. What is the meaning of the Kumbh? Kumbh is Sanskrit word for pitcher. Pot is okay, but pitcher. Pitcher means? Pitcher means? मिट्टी का जो रहता है ना, उसको पिक्चर बोलते हैं. तो कुंभ मना, that is the meaning. So Kumbh Mela, yes, we have been hearing that. What is Prayagraj? What is Prayag means? What is the meaning of Prayag? Prayag means the confluence. संगम, मिलना. दो नदियों को जहाँ पर भी मिलन होता है उसको प्रयाग बोलते हैं. आप अगर उत्तरांचल में गए हैं, चारों धाम की यात्रा किए हैं, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सब, तो बेस तक पहुंचने तक, मैं बद्रीनाथ तक गई हूँ, तो यू विल सी 5 प्रयाग्स देयर. नाग प्रयाग, देव प्रयाग, विष्णु प्रयाग, ऐसे 5 प्रयाग हैं. कर्ण प्रयाग और एक भी प्रयाग है, रुद्र प्रयाग. So these are 5 prayags which we see. So in every prayag, why it is important is there is the confluence of 2 rivers. आप क्लियरली देख पाते हैं ये नदी का कलर क्या है और ये नदी का कलर क्या है, और दोनों मिलके कैसे अपने अपने कलर नहीं छोड़ते हैं, बहुत दूर तक ऐसे ही जाते हैं. एक मडी रेड में है और एक बहुत क्लियर वाटर्स है. दोनों का कलर, दोनों मिलने के बाद भी ऐसे ही जाते रहते हैं. बहुत ब्यूटीफुल साइट है दैट इज. So everywhere the 2 rivers are meeting, that is called Prayag. But why Allahabad is called as Prayagraj? प्रयागों का भी राज means the greatest Prayag, the greatest confluence, that greatest Sangam. तो
दो नदियाँ तो मिल रहे हैं, हमको मालूम है, गंगा एंड यमुना, बट देर इज़ वन गुप्त संगम, गुप्त रिवर, द confluence, which is Saraswati. Then that makes the confluence more highest and making it as Prayagraj. Right? तो कुंभ तो होता ही रहता है. Just now you have seen the video where 12 देवताओं के जो दिन है, that is 12 years of humans. तो तब तक वो भाग रहे थे पकड़ के. तो every 12 years we have been seeing Kumbh, but 12 into 12, that is 144 years, is Mahakumbh, which we have been seeing, which we all are fortunate to be in this period of time, to feel that energy. तो why this संगम को इतना महत्व है? Why the rivers, the confluence of the rivers getting so much significance? What I understood is the body is made up of 5 elements. The whole universe is made up of 5 elements, whatever we have been seeing. And the planet is filled with 72% of water, right? And the miniature form of that universe is the body, which is again filled with 72% of water. So whatever is happening in the planet, the same things are happening here also. है ना? क्योंकि जो यूनिवर्स में चल रहा है वही एनर्जी से शरीर भी बना है, तो शरीर में भी वही असर हम देखते हैं. या हम जो सोचते हैं, जो बोलते हैं, उसका असर प्लैनेट के ऊपर पड़ रहा है. बिकॉज बोथ ऑफ अस आर मेड विद द सेम एनर्जीज. 72% ऑफ द वाटर इज इन द फिजिकल बॉडी. Only 12% earth is there, the mud, जिससे शरीर बना है. 4% is fire, 6% is air, remaining is ether, आकाश, जो स्पेस है शरीर में, जिससे पूरा कार्य चल रहा है. ग्राइंडर में आप ब्रिम तक डाल दिए चीज़ें, उसको ग्राइंड करना चाहते हैं तो होता है ग्राइंडिंग माताएं? पूरा भर दिया जार में, आप उसको ग्राइंड करना चाहते हैं तो होगा? तो क्या चाहिए उसमें? स्पेस चाहिए. आकाश तत्व जो खाली है, तो बहुत सारे पार्ट्स ऐसे शरीर में है जो ईथर, जो खाली है, जिससे पूरा वो प्रोसेस चल रहा है. आवाज़ कैसे निकल रहा है? आकाश तत्व. इसीलिए कहते हैं आकाशवाणी. जो दिखता नहीं है वो स्पेस से निकल रहे हैं, जिसको आकाशवाणी कह रहे हैं. राइट? सो इट्स ऑल द मैटर ऑफ द एनर्जी विच क्रिएटेड. एंड ऑफ कोर्स दिस टाइम ऑफ द ईयर, एज वी अंडरस्टूड फ्रॉम द क्विज ऑल्सो, the planetary conjunction makes the whole place, whatever the time is happening, based on the planets, whatever we understood, even in astrology, astronomy, everywhere we are looking at the planets. So planets में जो हो रहा है, उस रीति से मेरा जीवन चल रहा है. वही मान्यता है ना? हाँ, इसलिए प्लैनेट्स को ठीक करने के लिए हम देख रहे हैं. तो यहाँ पर प्लैनेट्स का ही कंजंक्शन, दैट इज व्हाट मेकिंग द कुंभ मेला सो डिवाइन, सो ऑस्पिशियस. तो व्हाट आई फील इज, वन इज द पानी जो मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है, एंड जो गुप्त
सरस्वती का वास हो रहा है या मिलन हो रहा है, दैट इज़ व्हाट मेक्स प्रयागराज मोर स्पेशल. क्योंकि as we have seen, 5 prayags are there already. The 2 rivers are meeting, but they are not so important. But Prayagraj, why it is important is because of Gupta Saraswati. So Saraswati is the goddess of knowledge. So when we talk about the nectar, Amrit, Pani, that is symbolizing the ज्ञान. हाँ या ना? हाँ, ज्ञान अमृत. अमृत हमेशा ज्ञान को कह रहे हैं. और यहाँ पर भी सरस्वती जो है, गॉडेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की जो देवी है, उनके प्रतीक, उनका ही प्रतीक ये प्रयागराज. तो नॉट जस्ट द फिजिकल conjunction of all these things, but more than that, it is Gyan which is there, which is called as nectar. Even in Madhuban also, Mount Abu also, in the river which is flowing near Abu Road, जहाँ पर हमारा बड़ा स्थान है शांतिवन, वहाँ नज़दीक एक नदी पार होती है. तो they say that from the satellite view, from the satellites, they have understood that there is that Gupta Saraswati which वहाँ पर जाके मिलती है जो नदी है. इसीलिए वो नदी कभी नहीं सूखता है, क्योंकि राजस्थान में पानी की इतनी दिक्कत है. और यहाँ पर हमारे आश्रम में 20,000 25,000 लोग आते हैं और पूरा साल प्रोग्राम्स चलता ही रहता है. दिक्कत भी होता है लेकिन कभी सूखता नहीं है. ब्रह्मा कुमारी इज नॉट सेइंग दिस. द साइंटिस्ट who have seen from the satellites, they are saying that यहाँ गुप्त सरस्वती का वास हो रहा है, इसीलिए यह स्थान कभी सूखता नहीं है. मतलब ज्ञान जहाँ पर है वहाँ पर समृद्धि है. ज्ञान जहाँ पर है वहाँ समृद्धि है. तो वन एनर्जी ऑफ द वाटर, आप कभी कुछ ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं या कुछ दुख है, कुछ कष्ट महसूस कर रहे हैं, वेन एवर यू टेक ए शावर, हाउ डू यू फील? यू फील रिलैक्स्ड. अब बहुत थक के आए हैं, एक बार शावर लिया तो यू फील सब थकान मिट गई, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, रिफ्रेश फील हो रहा है. सो पानी का क्वालिटी इज टू मेक यू रिफ्रेश्ड, मेक यू फील रिचार्ज्ड. तो स्थूल में पानी का इतना महत्व है, तो ज्ञान ऑल्सो, जिसका सिंबॉलिज्म हम फिजिकल पानी को दिखा रहे हैं, ज्ञान ऑल्सो मेक्स द सोल रिफ्रेश्ड, the soul recharged, and the soul gets the knowledge what to do and what not to do. क्या करना है, क्या नहीं करना है. अगर ये ज्ञान स्नान में हम, ज्ञान नदी में, ज्ञान गंगा में जब हम डुबकी लगाते हैं, तो आत्मा, जो क्वेश्चन था ना, व्हाट इज द मेन thing which everyone go for Kumbh Mela is sacred bath, holy dip. So what is the attainment through that? Moksha, right? If hypothetically सब मोक्ष को पालेंगे स्नान करने से, फिजिकली जाके डिप लेने से या नहाने से, then till now how many kumbhs happened and how many crores of people went and dipped themselves? So how many attained the moksha? The thought itself is very good, but
कौन सी पानी में हम डिप करने से या कौन सी गंगा में जाके हम नहाने से वो मोक्ष पा सकते हैं। और जो वहाँ रहने वाले तो फिर सब पावन ही हो जाएंगे, रोज उसी का पानी कर रहे हैं। तो फिजिकल नहाना एक एस्पेक्ट है, वो डिप लेना, गंगा स्नान करना एक एस्पेक्ट है। उससे भी महत्वपूर्ण, ज्ञान जब अपने अंदर लेते हैं तब आत्मा मोक्ष को पाती है। तो मोक्ष को पाना, व्हाट इज गेटिंग अटेनमेंट्स ऑफ मोक्षा? व्हाट इज अटेनमेंट ऑफ मोक्षा? मोक्ष को पाना माना, हाँ, भक्ति में क्या बोलते हैं? मोक्ष को पाना माना, भक्ति में यही कर रहे हैं ना कि मोक्ष को पाना है। सो व्हाट इज दैट अटेनमेंट ऑफ मोक्षा? मोक्षा इज कॉल्ड एज लिबरेशन, इंग्लिश में दैट इज लिबरेशन. So the soul getting liberated. So now we have to understand what kind of liberation I am seeking. मोक्ष ना सिर्फ जन्म मरण के चक्र से, क्योंकि everyone loves our role and we are very much enjoying to play our roles here. Though it is temporary, everyone knows that, but still we want to live. No one wants to die. But the thought behind is to attain moksha, liberation from the birth and death. So what actually we wanted? What kind of liberation we all wanted? So actually the soul longs to have the liberation from the pain and suffering. मोक्ष किससे मिलना है? दुख अशांति जो है, कष्ट पीड़ा जो है, उससे मोक्ष चाह रहे हैं हम. तो वो मोक्ष कब मिलता है? आत्मा जब ज्ञान को प्राप्त करती है, तो दैट इज व्हाट द लिबरेशन इज. आत्मा जब अपने को जानती है, पहचानती है, मैं आत्मा हूँ, और परमात्मा का ज्ञान जब प्राप्त होता है, तब आत्मा अपने ऊपर राज्य करना सीखकर स्वराज्य अधिकारी बनती है. दिस इज व्हाट ज्ञान इज ऑल अबाउट. हाउ आई कैन कंट्रोल माई ओन सेल्फ. आप कितना भी पढ़े लिखे हैं, कितना भी शास्त्र सब कुछ किया है, सब कुछ पाया है, लेकिन इफ आई डोंट हैव कंट्रोल ओवर माई ओन सेल्फ, काय का है सब. मैं बहुत बार कहती हूँ कि बहुत पढ़ाई किया है, डॉक्टरेट्स भी है और बहुत बड़ा पोजीशन में भी है, लेकिन खाने के टाइम पर थोड़ा सा नमक इधर उधर हो गया, मेरा कंट्रोल, मेरे मुंह या मेरा टंग जो है मेरे कंट्रोल में नहीं है. काय का पीएचडी, काय का मेरा पोजीशन, इतना सारे पैसा मेरे ऊपर, मुझे ही कंट्रोल नहीं है. तो अटेनिंग मोक्षा, वन अंडरस्टैंडिंग, spiritual understanding is that to attain liberation from the pain and suffering through the knowledge, through the ज्ञान. तो आत्मा का जब ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा का ज्ञान जब मैं समझती हूँ, वो जब अप्लाई करती हूँ जीवन में, तो मैं अपने ऊपर ही राज्य करना सीखती हूँ, जिसको ब्रह्मा कुमारी इसमें मैं बहुत बार ये अभ्यास करवाई हूँ. स्वराज्य अधिकारी, अपने कर्मेंद्रियों के ऊपर, मेरे पांचों इंद्रियों के ऊपर मैं कितना कंट्रोल कर रही हूँ, मेरा कितना कंट्रोल है. दैट इज एक्चुअल liberation while you are living here. While living here, if I can attain that state, that is
a kind of liberation from pain and suffering. Making sense? Making sense? हाँ, सब कुछ छोड़ के चले जाना, that is different concept. But सब कुछ करते, सब में रहते, if I can stay like that, then the Sangam of not only Ganga, Yamuna and Saraswati, but there are different Sangams in life. आप सब गृहस्थ में रहने वाले, राइट? आप कहते हैं दीदी आप लोग तो आश्रम में रहते हैं. इट्स संगम ऑफ गृहस्थ और आश्रम. मतलब गृहस्थ माना आप सब कुछ कर रहे हैं, सब में है. आश्रम माना यूजुअली क्या अंडरस्टैंडिंग है? सबसे न्यारा, हर चीज़ से परे रहने वाले. जो गृहस्थ में रहने वाले, सब में रहने वाले. तो शिव बाबा यहाँ पर परमात्मा हमको नॉलेज देते हैं दो चीज़ें. एक तो न्यारे भी रहो बट बहुत प्यारे भी रहो. तो इट इज़ नॉट जस्ट संगम ऑफ रिवर्स बट इट इज़ संगम ऑफ गृहस्थ और आश्रम. गृहस्थ में सब चीज़ों के साथ जी रहे हैं, लेकिन हाउ डिटैच्ड आर यू लिविंग वाइल बीइंग इन दैट. राजा जनक को क्या कहते हैं? व्हाट इज द टाइटल ऑफ राजा जनक? राज ऋषि थे. राजा थे लेकिन उनको ऋषि भी कहते थे. कैसे समवन बीइंग ए किंग और एन एम्परर ऑल्सो ऋषि. ऋषि तो सब कुछ छोड़ के जंगल में चले गए, लेकिन उनको राजा और ऋषि दोनों कैसे कहते हैं? तो एक महात्मा आए उनके राज्य में और उन्होंने कहा, राजा आप तो यहाँ पर राज्य में जी रहे हैं, भोग भाग्य सब कुछ है आपके लिए, फिर आपको क्यों कह रहे हैं कि आप ऋषि हैं? हम लोग हैं जो कंदमूल खाकर जंगल में रहने वाले, हम लोग हैं जो ऋषि हैं, आप क्यों राजर्षि? तो उन्होंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप एक काम करो. शाम का समय था तो उन्होंने बोला मेरे पास बहुत भोग भाग्य है, बहुत सुंदर चीज़ें हैं राज्य में, तो आपको 1 घंटा समय देंगे और वो सब देख के आने के लिए. आप पहले वो सब देख के आओ, लेकिन कंडीशन ये रखा, आपके हाथ में एक दिया देंगे और दिए में पूरा तेल भरा हुआ है. और उन्होंने बोला इस दिए के जो रोशनी है उससे आप पूरा राज्य की जो सुंदरता है, कुछ पिक्चर्स है, स्कल्पचर्स है, वो सब देख के आओ. तो उन्होंने बोला कि ये लेके जाओ, इस रोशनी में देखो, लेकिन कंडीशन ये है कि यू शुड नॉट स्पिल अ इवन सिंगल ड्रॉप ऑफ ऑयल फ्रॉम द दिया. एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए बाहर, राइट? तो उन्होंने ठीक है करके बोला और गया ऋषि ने, और हाथ में दिया लेकर पूरा देखने के लिए गए. फिर आ गए 1 घंटे के बाद. फिर राजा ने पूछा, राजा आपने देखा? ऋषि जी आपने देखा? हाँ महात्मा जी आपने देखा? अच्छा लगा आपको? तो उनका उत्तर था, वो तो होता होगा अच्छा ही, लेकिन मैं तो बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर पाया ये सब चीज़ों में. क्यों कंसंट्रेट नहीं किया? हाँ, क्योंकि जो कंडीशन था वही टिकिंग था हियर, कि एक बूंद भी तेल नहीं गिरना चाहिए. तो वो गिर गए तो फिर प्रॉब्लम है. इसीलिए मेरा फोकस जो है सिर्फ दिए के ऊपर था. तो राजा ने बोला यही तो मैं हूँ. समझे पॉइंट को? यही तो मैं हूँ. मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मेरा फोकस, मेरा कंसंट्रेशन जो है आत्मा ज्योति को जगा के रखने का है.
आत्मा ज्योति का रोशनी कभी कम ना हो, वो बुझ ना जाए, उसके ऊपर मेरा फोकस था, मेरा फोकस है। इसीलिए तो कह रहे कि वो राजा भी थे, फिर ऋषि भी। तो आप भी राजा भी है, गृहस्थ में है, हर चीज़ है, प्यारे बहुत रहना है, हर चीज़ करना भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ। बट इसके साथ साथ एक ऋषि का जीवन, अर्थात डिटैच्ड इन्वॉल्वमेंट, साक्षी होकर रहना पॉसिबल, पॉसिबल। तब आपका जीवन भी संगम बन जाएगा गृहस्थ और आश्रम का। सो प्रयाग इज नॉट ऑफ just 2 rivers or 3 rivers, but it is sangam of parmarth or vyavahar. Different sangams are there. So one sangam we understood grihasth और आश्रम का संगम है। दूसरा संगम परमार्थ और व्यवहार। गृहस्थ में आप व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन किस मनोस्थिति से आप व्यवहार कर रहे हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। किसी किसी का व्यवहार जो है नॉट ओनली फॉर हियर बट इट इज़ फॉर नेक्स्ट लाइफ टाइम ऑल्सो। मेरा परमार्थ जीवन का अलग है। लोगों को सब कुछ समझ में आना चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ अबोध सत्य भी है जीवन के, उसके लिए मैं जी रही हूँ, वो परमार्थ है। मतलब इहम के बाद, मतलब इस जीवन के बाद भी मेरा जो चलने वाला है वो परमार्थ है। मतलब परमात्मा के अर्थ में जो कर रही हूँ, मतलब मेरा इस इहम मतलब इस जीवन, परम मतलब इससे ऊपर, राइट? तो परम अर्थ इससे ऊपर जो है, नॉट ओनली सिर्फ ये फिजिकल जो चीज़ें दिख रहे हैं या कर रही हूँ इसके लिए ही नहीं, लेकिन इससे भी ऊपर पार परम में जाने का, उसके लिए मैं जो कर रही हूँ दैट इज़ परमार्थ। तो व्यवहार भले करो, लेकिन मेरा परमार्थ भी ठीक हो। तो इट इज़ द संगम ऑफ ज्ञान और योग। ज्ञान जो है एक समझ है, रोशनी है, जीवन का जो शक्ति है वो सब है। नॉलेज इज पावर कहते हैं, है ना? नॉलेज इज माइट, पावर। तो ज्ञान जो है शक्ति है, लेकिन उसको जीवन में धारण करना, दिस इज लाइट। देयर इज माइट, बट उसको महसूस करना जीवन में, जिसको योग कहते हैं, वो लाइट है। समझा? भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं वो उनसे शक्ति मिल रही है, ज्ञान से शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन उसको अप्लाई करने से परमात्मा ने ज्ञान दिया कि आप सिर्फ ये शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाले आत्मा है, ये शक्ति है। दिस इज पावर, नॉलेज इज पावर। बट मैं जब उस आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाती हूँ, जो भी कर रही हूँ मैं आत्मा शरीर के द्वारा कर रही हूँ, सामने जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, इन लॉज है, ग्रोसरी वाले भी, दुकान वाले भी है, दूध वाला भी है, और मेरे ऑफिसर भी है, सब जो है सब आत्माएं अपना अपना प्ले कर रहे हैं पार्ट को। उस रीति से जब मैं देखती हूँ सभी को, तो किसी की भी कुछ गलती मेरे को दुख नहीं देता है, मेरे को डिस्टर्ब नहीं करता है। देन हाउ वुड आई बी? आई लिव लाइट। तो ज्ञान इज माइट,
But when you practice that in life, that is yoga, right? Then that becomes the light. Means the soul feels liberated. Light is what? Being light, हल्का महसूस करना, प्रकाशमय महसूस करना, कोई भी बाधा या चिंता नहीं है, तो that is the stage of lightness. तो ज्ञान भी है और योग भी है, दोनों का संगम. ज्ञान, दैट इज व्हाट, ज्ञान कुंभ मेला. तो ये सब चीज़ें सिर्फ सुनने वाली नहीं है. तो वो एनर्जीज जो है, एक तो पानी का एनर्जी बहुत ऊंचा है, राइट? पानी की जो एनर्जी है बहुत ऊंची है. इसीलिए जस्ट नाउ आई मेंशन्ड दैट व्हेन यू टेक ए डिप, व्हेन यू टेक ए बाथ, देन यू फील सो रिलैक्स्ड, राइट? सो दैट इज पानी की जो शक्ति है. तो वहाँ पर 3 नदियों का जो संगम देख रहे हैं, 3 बहुत बड़े एनर्जीज मिल रहे हैं एक जगह पर, इसीलिए उसका वर्णन है. और दूसरा, वहाँ पर जो रिचुअल्स भी परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत तप चल रहा है, राइट? एक पवित्रता की शक्ति है. कहाँ कहाँ आप जीवन में कभी किसी को नहीं देखते, इतने साधु संत जो अपने जीवन में आजीव ब्रह्मचर्य व्रत को लिया है, तो सब एक जगह पर मिल रहे हैं. कितना शक्ति होगी. आप जब यहाँ शांति सरोवर में आते हैं, यू फील सो पावरफुल बिकॉज द एनर्जी हियर इज प्योर. यहाँ की जो पवित्रता की शक्ति है, यही खींच रही है आपको, यही जो वाइब्रेशंस फैला रहे हैं. तो वहाँ पर करोड़ों साधु संत हो जो इस धरती को पवित्रता के शक्ति से आगे बढ़ाने वाले. तो इतने लोग एक जगह पर मिल रहे हैं, तो उसकी एनर्जी और भी बढ़ जाती है. यस, राइट? एंड जो एक तो पानी की एनर्जी बोला, दूसरी है पवित्रता की शक्ति, तीसरी है प्लैनेटरी कंजंक्शन. जो प्लैनेट्स, हम 3 प्लैनेट्स के बारे में अभी भी क्विज में आपने देखा, कौन कौन से प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो रहा है? जुपिटर, सन एंड मून. तो सन की जो शक्ति है, दैट इज फिजिकल एनर्जी. उष्ण के बिना शरीर नहीं चलता है ना? सूर्य के बिना शरीर नहीं चलता, ऑफ कोर्स चंद्र के बिना भी. लेकिन सन ऑलवेज सिंबलाइज्ड द फिजिकल एनर्जी, शारीरिक शक्ति, फिजिकल. और मून इज ऑलवेज कनेक्टेड विथ योर माइंड. यू नो दैट. पौर्णिमा का दिन जब होता है या अमावास्या का दिन होता है, तो लोगों के मूड स्विंग्स होते हैं. आपने नोटिस किया? मूड स्विंग्स होते हैं. जो नेचर से बहुत कनेक्टेड है ना, वो लोग फील करते हैं. किसी किसी को हम टच भी करना नहीं चाहते हैं उस समय, क्योंकि उनके एनर्जीज थोड़ा डिफरेंट रहते हैं. किसी किसी का बहुत डाउन हो जाता है, किसी का बहुत हाई हो जाता है. वो अपनी साधना के ऊपर रहता है. किसी किसी का बहुत लो एनर्जी, तब उनको कुछ अब बात करो तो चिढ़ जाते हैं. उनको टच ही मत करो क्योंकि कल पौर्णिमा है. आप नोटिस करो ये सब चीज़ें. दिस इज व्हाट आई सेड, दिस ऑल आर थिंग्स आर नॉट फिजिकल, इट इज जस्ट एनर्जी लेवल्स. तो वो एनर्जी के कारण, मून के एनर्जी जब मन के ऊपर प्रभाव डालता है, तो प्रभावित हो जाते हैं मन. तो मेरा शरीर भी मन के कंट्रोल में नहीं है उस समय. तो जैसे आया वैसे बात कर लेती हूँ, जैसे आया वैसे मैं रिएक्ट कर देती हूँ. तो वो नेगेटिव इफेक्ट. और किसी की साधना बहुत ऊंची है, तो उस समय जब मून का असर पड़ रहा है, फुल मून है या न्यू मून है, उस समय क्या हो रहा है, उनके एनर्जी लेवल इतना हाई कि दे फील वेरी एनलाइटेंड.
those 2-3 days. They feel very high in energies. तो एक तो फिजिकल एनर्जी सन, दूसरी है मून एनर्जी, माइंड के, मन का असर, जुपिटर गुरु है, स्पिरिचुअल एनर्जी का प्रतीक है. तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एनर्जीज, all 3 come together, then that is the highest energy. तो प्लैनेटरी कंजंक्शन से भी एनर्जी जनरेट हो रही है. और चौथा एनर्जी इसीलिए हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहाँ पर जो रिचुअल्स चल रहा है या खान पीन की जो शुद्धि चल रही है उस समय, या उपवास कर रहे हैं, या जो पवित्रता का व्रत जो आपके जैसे लोग जो जाने वाले हैं, गृहस्थी है, वो भी कितना शुद्ध मन बुद्धि से जाते हैं, है ना. हाँ, कोई भी ऐसे गंदे चीज़ खाते नहीं है वहाँ पर, या अपवित्रता का नहीं रहता, शुद्ध ही शुद्धता है, तो उससे भी कितनी एनर्जी होती है. तो इसीलिए नॉट ओनली प्रयागराज में उस एनर्जी सभी है, लेकिन वो एनर्जी जो है हर जगह पर पूरा स्प्रेड हुआ है. जो कुछ साधु या कुछ महात्माएं हैं, मौनी अमावस्या से लेकर महाशिवरात्रि तक मौन में रहते हैं, इसीलिए उसको मौनी अमावस्या कह रहे हैं. मौन में रहते, साइलेंट में रहते. कितनी एनर्जी बच गई. बोल में कितना वेस्ट कर रहे हैं हम, है ना. गलत भी बोल दिया, बुरा भी बोल दिया, या कुछ दुखदाई बात भी बोल दिया, अननेसेसरी बातें भी बोलते हैं, ग्लानि की बातें भी बोल देते हैं. एनर्जी लॉस वहाँ पर बोल से हो रहे हैं. तो एनर्जी को गेन करने के लिए जितना इसको कम बोलेंगे या यूज़ करेंगे, उतना मेरा जो एनर्जी है वो बढ़ेगा. तो कहीं लिखा है वहाँ पर, मतलब ऐसे ही देख रहे थे, तो उसमें एक जगह पर देखा, संगम ऑफ नॉट जस्ट रिवर्स, वो भी लिख सकते थे ना, लेकिन वहाँ पर लिखा था ये संगम है आध्यात्म और अध्ययन का संगम. ये जो आध्यात्म शब्द आया है, अध्ययन, अध्ययन माना स्टडी, नॉट ओनली जस्ट मैं बुक पढ़ लिया, वो नहीं. अध्ययन इस जो मैं जीवन में धारण करती हूँ वो है. सो आध्यात्म शब्द भी अध्ययन से निकला है, और आध्यात्म और आस्था का संगम, वहाँ पर लिखा था आध्यात्म और आस्था का संगम. भक्ति का संगम नहीं लिखा. आध्यात्म और आस्था, आस्था तो है, लेकिन वो आध्यात्म, आस्था और भक्ति का संगम नहीं लिखा. आध्यात्म और आस्था का संगम, अर्थात नॉट जस्ट फिजिकल थिंग्स ये सभी, लेकिन आध्यात्मिकता अपने अंदर जीवन में लेके आना, तब जाकर अध्ययन से अपने जीवन में मुक्ति को पा सकते हैं, मोक्ष को पा सकते हैं दुख दर्द से. तो बहुत सारे बैलेंसेस हैं. ये संगम जो हम कॉन्फ्लुएंस कह रहे हैं, दिस इज द बैलेंस एक्चुअली, बैलेंस ऑफ द सोल एनर्जी एंड द बॉडी फिजिकल एनर्जी, दोनों इक्वल चले, तब आपका हेल्थ भी ठीक रहता है. आत्मा बहुत पावरफुल है, शक्ति तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन शरीर बहुत वीक है, तो आत्मा अपनी जो शक्ति है उसको बहुत बार प्रदर्शन नहीं कर पाती है. लेकिन शरीर बहुत फिजिकली आई एम हेल्दी बट माई सोल इज़ वीक, तभी भी आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं होती है. इसलिए इट इज़ संगम ऑफ आत्मा और शरीर. तो संगम मीन्स जो हमने अभी तक सुना, तो ये सब ज्ञान का प्रतीक है. जब ये ज्ञान का प्रतीक हमारे जीवन में लाते हैं, देन जाके हम
मोक्ष को प्राप्त करते हैं फ्रॉम पेन, सफरिंग, जो पीड़ा, नॉट फिजिकल अलोन, बट यहाँ की पीड़ा बहुत ज़्यादा है, यहाँ का दुख बहुत ज़्यादा है। आज बहुत अच्छी बात परमात्मा की ज्ञान मुरली में सुनाई, सवेरे जो डिस्कोर्स होता है, तो उसमें बाबा ने बोला, शिव बाबा परमात्मा जो पॉइंट ऑफ लाइट, तो बाबा ने बोला 3 पर, एक है परदर्शन, परचिंतन, परमत, ये तीनों को निकालो। क्या क्या है 3 चीज़ें? परचिंतन, हमेशा दूसरों के बारे में चिंतन करते रहते हैं, उनके लाइफ के बारे में मैं क्यों चिंता कर रही हूँ, डस्टबिन को इधर रख रही हूँ, उनके डस्ट जो निकाला हुआ मैं इधर अंदर रख रही हूँ। तो परचिंतन। दूसरा परदर्शन, पूरा टाइम मेरे ऊपर नहीं है आंख, मेरी आंख पूरा टाइम दूसरे कैसे क्या कर रहे हैं, तो परदर्शन। और तीसरा है परमत, जो कुसंग कहो या बुराई का संग कहो, वो परमत है। उन्होंने जैसे बोला मैं ऐसे ही किया। तो ये 3 पर को निकालो और 1 पर को धारण करो। 3 पर को अभी क्रॉस आउट करो। सो व्हाट इज टू बी इनकलकेटेड? चौथा पर उपकारी बनो। ये परमात्मा के डायरेक्ट महावाक्य है। तो 3 पर कौन कौन से? आज ये ज्ञान महाकुंभ में कुछ धारण करके जाना है। 3 पर निकालो। कैन वी प्रैक्टिस दिस फॉर 1 वीक? नेक्स्ट 1 वीक जो है, हर हफ्ता आप कुछ ना कुछ होमवर्क तो लेके जाते हैं, तो नेक्स्ट 1 वीक 3 पर को निकाल सकते हैं। कौन कौन से? कैन वी रिपीट? परचिंतन, परदर्शन, परमत। याद रहेगा? और एक बार रिपीट करो, सभी बोलो। बोलने से क्या होता है कि अंदर बैठ जाता है, फिर आप कर पाएंगे। व्हाट इज द फर्स्ट वन? जोर से बोलो। ये तीनों को निकालना और 1 पर को धारण करना। शिव बाबा ने बोला 1 पर को धारण करो। कौन से? परोपकार। परोपकार करते हैं तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट मेरा उपकार मैं करती हूँ, तभी दूसरों को करवाती हूँ। तो 1 पर को जीवन में धारण करो, लेकिन ये 3 पर जो है वो निकालो। मैं समझती हूँ सच्चा कुंभ, ज्ञान महाकुंभ वही है। ये 3 बातों को निकालो और 1 बात को धारण करो, तो ऑटोमेटिकली आत्मा दुख, अशांति, दर्द से, पीड़ा से मुक्त हो जाएगी। क्योंकि एनर्जी लॉस वहाँ ही हो रहा है ये तीनों में, तो वहाँ ही दुख पा रही है, वहाँ ही पीड़ा अनुभव कर रही है। तो ये एक शब्द भी हम लेके जावे, परोपकारी बनना है। मेरा उपकार मेरे को करना है पहले, फिर दूसरों को दे देंगे। आप उस स्थिति में हैं तो ऑटोमेटिकली यू गिव द सेम वाइब्रेशन, सेम एनर्जी टू द अदर्स ऑल्सो। तो आप जब भी योग में बैठो, आप मेडिटेशन करते हैं रोज थोड़ा समय, 10 minutes? हाउ मेनी ऑफ यू डू दिस प्रैक्टिस एट होम? हाउ मेनी ऑफ यू? Only? Can we have this homework also, second homework? So ये पूरा हफ्ता, next 1 week, 10 minutes at least, sit and do meditation, साधना, तपस्या। क्योंकि एनर्जीज ऐसा है, वहाँ पर ही नहीं है, यहाँ तक भी है वो एनर्जी। इफ यू फील इट, फिजिकली दिख रहा है यहाँ पर शांति सरोवर में, इसलिए यू आर फीलिंग इट, राइट? आपका घर भी एक शांति सरोवर, एक महाकुंभ बन सकता है इफ यू प्रिपेयर योर माइंड एंड प्रैक्टिस दैट इन योर लाइफ।
तभी मैंने बोला कि ज्ञान कुंभ महाकुंभ वहाँ पर ही नहीं, अगर मैं महाकुंभ में हर रोज रहूँ तो हाउ वुड इट बी। तो आपके घर को ही इतने एनर्जेटिक फील कराना है, इतना शक्तिशाली, जहाँ पर की 3 बातें आए ही नहीं अंदर, और एक ही परोपकारी रहना है। तो ये नेक्स्ट वीक में कैन वी टेक अनदर थॉट, अनदर डिटरमिन थॉट? हाँ, रेडी ऑल ऑफ यू टू टेक दिस थॉट? 10 मिनट एटलीस्ट, और ज़्यादा करें तो और भी अच्छा है। 10 मिनट आपके घर में ही बैठे मेडिटेशन करना है। ये मेडिटेशन में आप अपने आप को चार्ज कर रहे हैं, आपके घर वालों को चार्ज कर रहे हैं, आपके घर को सुरक्षित रखने के लिए चार्ज कर रहे हैं, और वही एनर्जी पूरे आपके एरिया में जाएगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी हैव टू मेक इट ए पॉइंट टू डू द मेडिटेशन एवरी डे। शिव बाबा तो ये कहते हैं आपका योगी जीवन होना चाहिए, योग करने वाले नहीं, लेकिन योगी लाइफस्टाइल हो। हाँ, 10 मिनट बैठे योग करो, फिर आपकी जो सात्विकता है संकल्प में, बोल में, कर्म में, वो लाए तो वो असली ज्ञान है। अपने जीवन में उसको धारण करना, वो असली ज्ञान है। ठीक है, 10 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे। हाँ, करेंगे घर में। कितने लोग ये संकल्प से जा रहे हैं नेक्स्ट संडे तक हमको एवरी डे 10 मिनट्स मेडिटेशन करना है? हाथ उठाओ, ताकि याद रहेगा कि मैं वहाँ पर दीदी के सामने, परमात्मा के सामने प्रतिज्ञा करके आए थे। हाँ, बहुत अच्छा, आपके लिए ताली बजाओ। अच्छा है, तो अभी थोड़ा मेडिटेशन करेंगे हम। हाँ, वो ज्ञान कुंभ को इधर ही अनुभव करने का। ऑफ कोर्स हम फिजिकली वहाँ गए जैसा विजुअलाइज भी करेंगे, लेकिन वो एनर्जी जो है वो हम फील करेंगे। एनर्जी फील करना आता है आपको? हाँ, यू कैन फील दैट। आप फील कर रहे हैं, यू आर वेरी सेंसिटिव, द सोल इज़ वेरी सेंसिटिव टू फील द वाइब्रेशंस एक्चुअली। आप इसीलिए इधर है, आप फील कर रहे हैं, तभी तो ये स्थान आपको खींच के लाया है यहाँ पर। जिनको एनर्जी महसूस करना नहीं आता है वो आते ही नहीं है। तो आप सभी को वो सेंसिटिविटी है और वो सेंसिबिलिटी है आत्मा के अंदर। अभी एक छोटा ऐसा एक्सपीरियंस करेंगे। पहले आपके दोनों हाथों को ले लो और अच्छे से रब करो। रब करना एक फिजिकल थिंग है, लेकिन कौन सी संकल्प से रब कर रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो एक संकल्प ले लो, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। आप अंदर ही अंदर बोलो 3 बार, राइट? मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, परम पवित्र आत्मा हूँ। उस एनर्जी को आपके आंखों के ऊपर, चेहरे पर रखो। वंस अगेन, और एक बार करो, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। अंदर ही वो एक्सपीरियंस करते, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। फील द एनर्जी। आपके हाथों को, दोनों को दूर करते जाओ, वो पुल आप फील करेंगे। यू कैन फील द एनर्जी। कैन यू फील इट? एक्सपीरियंस इट। वो खींच जो है, यू कैन फील इट। सिंपल थिंग। आपके संकल्प जो है, सिर्फ 3 ही बार अच्छे संकल्प किया, उस संकल्प को यहाँ एक फिजिकल रूप लाया, तो भी फिजिकली यू कैन फील द एनर्जी। तो आत्मा कितना सेंसिटिव है
to experience the vibrations or the energy. इसीलिए it's very important to create that energy in yourself and to create that kind of vibrations in your home also. So let's have few minutes of meditation experience, sitting quietly. बच्चे सब बैठ जाओ, अभी थोड़ा समय योग करेंगे, सब मेडिटेशन करेंगे, बैठो. थोड़ा समय के लिए कोई बात नहीं करेंगे, साइलेंस. As you sit quietly, relaxed, take all your attention inside. Just feel all your energy is focused, centered in the center of the forehead. Just stabilize yourself in one simple thought that I am a pure being. मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ. भ्रुकुटी के बीच में महसूस करें एक सूक्ष्म सितारा चमक रहा है और मैं आत्मा शुद्ध पवित्र शक्ति हूँ. मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ. Experience a point of light, energy in front of you who is radiating divine power. मैं महसूस कर रही हूँ मेरे सामने परम पवित्र शक्ति परमात्मा उपस्थित है और उनसे मैं आत्मा शांति की शक्ति को अनुभव कर रही हूँ. परमात्मा पिता शिव बाबा सर्व शक्तियों का सागर है और मैं आत्मा उस परमात्मा से सर्व शक्तियाँ महसूस कर रही हूँ. Just feel the vibrations from the Supreme. You just feel comfortable being in the circle of that highest energy. ये परमात्मा ज्ञान परमात्मा शक्ति मुझ आत्मा को फिर से शांतमय
शक्तिमय बना रही है। आत्मा फिर से शुद्ध पवित्र बनती जा रही है। यही सच्चा कुंभ है। परमात्मा शक्ति से मैं आत्मा पावन बन रही हूँ और एक्सपीरियंस ये जो शक्ति पूरे विश्व में फैल रहा है, जिसमें मेरे घर परिवार वाले, संबंधी सब इसी डिवाइन एनर्जी के ऑरा में सुरक्षित है, स्वस्थ है, पवित्र बन रहे हैं। इसी एनर्जी को, इसी शक्ति को फैलाने के लिए, जीवन को महकाने के लिए मेरा ये दिव्य जन्म है। इस एनर्जी से आत्माओं की शुद्धिकरण हो रहा है। एक सद्भावना चारों ओर फैल रही है। ये साकार रूप में करने के लिए फिर मैं अभी कर्म क्षेत्र पर कर्म करने के लिए आ रही हूँ, लेकिन इसी संकल्प से रहूँगी, मैं आत्मा शुद्ध पवित्र हूँ, शक्तिशाली हूँ। धीरे से ये एनर्जी पूरा शरीर में फैल रहा है। अनुभव करें, पूरा शरीर बहुत हल्का, शक्तिशाली, स्वस्थ बनता जा रहा है। इन्हीं शुभ विचारों से आंखें खोले and just be. ओम शांति शांति शांति। Can you all feel the energy? फील कर सकते हैं, महसूस कर रहे हैं हम? तो इसी एनर्जी को आपके घर में भी फैलाना है। हर रोज़ एटलीस्ट 2 संकल्प याद रखना। एक 10 मिनट मेडिटेशन करके ये एनर्जी को वहाँ पर भी क्रिएट करना है, राइट? और दूसरा, और एक धारणा कौन सी? नेक्स्ट 1 वीक 3 पर को निकालना और 1 पर को धारण करना, ठीक है? ओम शांति।